from where the half of the things you have to sacrifice. If you don't sacrifice, never give you pleasure. So अप्पो means half, आधा, and किलम का मतलब होता है नाश, जिससे आधा फल नष्ट होने वाला आता है. That is अपोकिलम. So अपोकिलम स्थान is always व्यय स्थान of a केंद्र. जो आपके बेसिक सुख की हानि करते हैं वो आपका अपोकिलम स्थान होता है. So अपोकिलम स्थान थर्ड हाउस 6, 9 and 11. Please check, some more glasses are missing. Please check below your chairs, some more glasses are missing. Very small to carry in the home. Don't carry. इतना आप घर पे नहीं पीते. और दिवाली बहुत लंबा है अभी. दिवाली में दिया जला के कान से आके जला देगा. दिया वही जलाता है कान से. So apokilam is a half automatically. You don't expect full from your apokilam. Never. So apokilam में क्या होगा? Third apokilam. Whenever the people are struggling, they had sahas, parakram, he loses his pleasure. सबसे पहले इसका नींद, मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दे. थर्ड हाउस अफेक्टेड हुआ ना, उसका व्यवस्थान है. जो प्यार करते हैं वो डेयरिंग करते हैं, फिर गाते मेरी नींद मेरी चैन मुझे लौटा दे. वो तेरे पास रहेगी. तो ये थर्ड हाउस. Whenever any people are struggling, daring, कुछ भी कर रहे, so they are affecting their pleasure. This is the house. The period is given. This period is given 2 to 4. 2 to 4. Time दिया है पराशर ने 6 to 8, 8 to 10. The sun movement. It's a sun movement. So it is time given 2 to 4, 4 to 6, and then 6 to 8. The rising time. So 2 to 4. It's a time where the entire nature get peace. And this is the house of subconscious mind. This is your conscious mind, Chandra. This is your subconscious mind. हम कहते हैं ना conscious mind इधर है, subconscious mind उसके पीछे है. Third house. जिनका third house बहुत powerful होता है, they subconsciously so much powerful. Third house I say it's a window shopping. लोग जाते रहते हैं ये कितने भाव का है, ये कितने का है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ये सारे टेंशन रहते हैं, बाहर आते रहते हैं. और फिर बोलेगा ठीक है मैं आऊँगी लेने, लेगी नहीं. सबकॉन्शियस माइंड. दिस इज द टाइम 2 to 4 where the entire things, and that is the muhurat. See, yesterday there was Amavasya, night Amavasya was on Thursday, but Tithi wise Amavasya was yesterday. Yesterday there was in Hindu they celebrate the Divasa or something. Deep Amavasya. Why it is that? I asked so many women, why this is there? Nobody got the answer. But why it is there? Because this is the biggest Amavasya in the whole year. पूरे साल की एक बड़ी होती है. And this is the Amavasya from where the thief start his मुहूर्त. चोर अपना चोरी करने का मुहूर्त शास्त्र में लिखा है, धर्म सिंधु में लिखा है. अगर खात डालना है, खात बोलते हैं ना चोरी मतलब खात डालना है, तो आषाढ़ी अमावस्या से मुहूर्त करो. इफ यू आर नॉट कॉट इन होल ईयर यू विल नॉट बी कॉट. सो दैट इज व्हाई द टू कॉट द थिफ द फीमेल आर इट. आदमी जगेगा तो खेत में कौन काम करेगा? इसलिए औरतों को बोलते थे कि तुम ये बातें करो, भगवान का नाम लो, और पूरी रात देखो कोई चोर चोरी तो नहीं कर रहा है. अगर चोर सक्सेस हो गया तो फिर पूरे साल उसको आप पकड़ नहीं सकते. ये उसका मुहूर्त होता है. धर्म सिंधु में लिखा है चोरी करने का मुहूर्त, वो भी लिखा है उसमें. मुहूर्त तो सभी मुहूर्त होते हैं, कार्य तो सब कार्य है, फिर उसका फल अलग अलग मिलता है. सो इट गिव्स यू हाफ इफ यू आर लास्ट. जैसे मैंने बोला कि थर्ड हाउस इफ राहु इज प्लेस, you will miss your next brother or next sister. Or there is nothing in that house, there will be nothing in your balance. No younger will be there. Third house shows after you. So suppose third house is powerful and somebody born after you, your younger sibling, आपका छोटा भाई या छोटी बहन आई, आपके क्यों बड़ा बच्चा खुश नहीं होता? आप देखिए ना, हर एक के घर में ये है. हम लोग बोलते हैं अब छोटा आ गया ना उसको केयर करते, इसका ध्यान नहीं, ये नेचर ने दिया हुआ है. वंस द यंगर सन कम्स आफ्टर यू,
you will share your property. You start sharing your property. So your half property has got because of your younger brother के. See, मिले नहीं मिले, बाप दे नहीं दे, वो फ्यूचर का बात है. But by nature, if you born with the same blood relation, your half property, half. यहाँ लिखा है कि half चीज भी मिलेगा. 6 house, if person is facing any disease, डॉक्टर इतना बड़ा लिस्ट देगा, उसमें से पता चलेगा आधा खाना मना कर दिया उसने. ये मत खाना, तलेला मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना, सीढ़ी मत चढ़ना, वजन मत उठाना. ये तो करे क्या, ऐसे खड़ा रहे क्या? 6 house is a half apokilam. Half ही फल मिलता है. Even though you come out from the disease, there is lots of restriction. 6 house. Then 9th house, because half will be balanced for your next birth. अगर हमको 100 रुपया मिला, हम ऐसा है कि हम 100 रुपया खर्च कर देगा. वो 100 रुपये का काम करने, ये कर्म स्थान का व्यवस्था. कर्म से किया हुआ फल से कुछ पोर्शन वो रख लेता है. लाइक डिडक्टिंग अ TDS. That same TDS you can claim in next year. So 9th house half मिलता है आपको, आपके भाग्य का आधा मिलता है, आधा बैलेंस होकर अगले जन्म में मिले, अगले टाइम में. I don't say next birth, but next year. And 99 200% will complain. मैं काम करता हूँ उससे प्रपोर्शन में मुझे फ़ायदा नहीं होता. ये तो अच्छी चीज़ है क्योंकि आपका आधा चीज़ अपने आप इन्वेस्ट हो रहा है, वो मिलेगा आपका. एंड 12th हाउस इज अ लॉस. वंस यू लॉस you will get only recovery of house. 6, 8, 12 is a non-recoverable house. I say that is non-recovery because you can't recover the origin. So suppose 12th house is called the thing, the loss which is beyond your vision. See, 12th house is a house of beyond vision. जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें 12th house में आती हैं. Like earthquake, mundane earthquake, tsunami is seen from 12th house. Why? Because that is a natural calamity over which nobody have a vision. Nobody has a vision. There was a Mr. S.H. Kelkar from Pune. Kelkar sir. S.K. Kelkar sir. Great person who always predict the earthquake. Master in earthquake. I met in 94. At that time I was very young. So, but he also had not given the technique. Now his son is there. His son is there? His son is there. He is doing everything. And Suhad Dongre. They have अच्छा, डोंगरे और सुहाग डोंगरे and both highly expected person. So 12th house is also wherever you get whatever you lost. Suppose you said my pocket has cut, my purse has cut. You will recover everything. But whatever original is original, you will not recover that. So that is half. अब इसमें मजा क्या होता है? Only you see concentrating Kendra, your entire Kundli will finish. See, every all house has finished. Now in that what magic is there? Either you will get a fixed sign, either you will get a movable sign, either you will get a dual sign. So, first should be movable. Sorry, in order ऐसा है. जगह बना. So you will be always get either movable, चारा जिसको आप बोलते हैं, either you get a fixed, स्थिर, and either you get a dual. This actually the origin whether prior to Parashara it was only movable and fixed. Parashara has dual, added dual. Many people don't know the dual. See, the sequence was. है उनका. So is it fixed? Chara stira, chara stira, chara stira, chara stira, chara stira. Prior to Parashara there was only chara and stira. If you find Bhrugu, chara stira, chara stira. He has not mentioned anything about dual. Why Parashara? He frees the movement. He is the only person who has freed the movement. So after char, stir, to move from stir to char, he has frees the movement. So that is why dual sign is half chara and half movable. Fixed and movable. So Dvisabha has a both tendency, and that is why you will find greatest people in Dvisabha. Dvisabha is the only lagna where you can totally change entire your life. Dhirubhai Ambani, Rajesh Khanna,
Mitul Lagri, every Ratan Tata, Tanvi Lagri. Why do you have a double stand? Because whenever they born in whatever situation, see हमारी दो ही सिचुएशन में हमारा जन्म होता है, या हम बहुत पैसे वाले घर में जन्म होते हैं या गरीब। पैसे वाले घर में है तो यू फिक्स्ड, और अगर आप पैसे वाले घर में नहीं जन्मे तो मूवेबल। The ancient rishi has said that the evolution of earth started by rotation. So he said movable. See, previously people are called tribal people. All people are tribal because they move from here to here. That is why India and all the nation has come. Because evolution starts from the Madhya Asia. From there all people have traveled. All have traveled. So the Parashara and all ancients say that our evolution starting mesh from movable. Things is always moving. Then what happens is that civilization has started. So after civilization the fixed sign has come. Fixed sign says no, now we have to settle here. कब तक घूमेगा? अब एक जगह बैठो, ये अपना पूरा हिंदू संस्कृति से है. Because we are residing the first people who reside in the bank of river, that's Hindu, that we are a Hindu. So the fixed sign comes. So there is only two things. जो मूवेबल में जन्मे उसका लाइफ एंड भी मूवेबल होगा, फिक्स में जन्मे वो फिक्स में होगा. सिर्फ मूवेबल में होगा तो क्या होगा? अगर यू आर बॉर्न, दैट इज व्हाई द काल पुरुषा हैज स्टार्टेड फ्रॉम मूवेबल्स. बोलते हैं कि ऑल प्लेसेस आर ऑलवेज रोटेटिंग अराउंड यू. बोलते हैं सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द घूमती रहती है. आप लीजिए, आप लेते रहिए. लाइक यू आर मूविंग इन द दिस कैटरिंग. अब पहले क्या था, लोग बैठते थे, खाना आता था. अब लोग घूमते हैं, खाना वही रहता ऐसा हो गया ना. तो मूवेबल में क्या था कि यू मूव बोलता है, यू मूव, यू गेट अ प्लेस मूव. तो ये चार लगने वालों का मैंने देखा है कि वो अपने जिस जन्म से चालू होता है, जन्म से जो पोजीशन है उसे वो आगे ही जाएगा. मूवेबल विल रीच टू वन स्टेप अहेड, एक स्टेप आगे जाएगा. स्थिर, इफ यू आर बोर्न इन द स्थिर लगना, यू विल मेंटेन व्हाटएवर यू वांट. अब बच्चा जन्मेगा तो बोलेगा पापा क्या कर रहे हैं? डॉक्टर. मैं डॉक्टर बनना है. उसको फिक्स होगा मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे ये बनना है. क्योंकि ये चारों चीज़ें फिक्स आ गई है. अब कोई चार लगने वाले को आप पूछो कि हाउ इज योर मैरिज लाइफ? चल रही है. पहला क्वेश्चन किसी को भी पहला क्वेश्चन पूछो कि आपका घर कैसे चल रहा है? चल रहा है, अभी ठीक ठाक है. काम ठीक ठाक है, चल रहा है. वो चल ही होगा क्योंकि चल वाले चलाते रहते, कभी बैठते नहीं, स्थिर होते नहीं. चल है ना, तो बोलते हैं पैर में चक्कर है, चलता ही रहेगा. वो स्थिर आया तो ही फिक्स, उसका बॉडी स्थिर रहेगा. आप 10 साल बाद उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं ये है, किया होगा, मेरा चेंज नहीं आया, फिक्स है. उसका घर स्थिर होगा, उसका ये तो वैसे मानते हैं सब स्थिर होगा. पर यहाँ पे आपको क्या लेना है कि डेली फेसिंग सेम पर्सन. सिर्फ मेनी पीपल हैव 849 लॉकर, 850 लॉकर फिक्स रहता है उनका, और आने में 750 लॉकर लोकल ट्रेन. बस ये फिक्स रहता है. क्यों? बिकॉज दे आर ऑलवेज फेसिंग द फिक्स पीपल. अपोजिट में है ना. 7 days नॉट ओनली फॉर मैरिज. फिक्स व्हाट यू फेस. आप रोज ऑफिस में 4 ही आदमी को देखते हैं. अब वो सेल्समैन होगा जो चेयर वाला होगा तो रोज कितने को देखता होगा पता भी नहीं चलता. तो मूवेबल. Then we started dual. Dual is the combination, rare combination. I say dual is a rare combination. Then like a person is also they are rare. They will entirely change. क्योंकि अगर पहला 15 में वो जन्मे हैं तो they are movable. They will go to fix. In the end of the life, they will settle. Like Dhirubhai Ambani, he is rotating so many. Half of life he is traveling. Then he settles. Unsettled is generation. और अगर last half में तो you are born with the fixed resources, and then after the half life you have started traveling. तो ये दोनों बाजू होता है. Like
your last Sahinshah, Badusha Jafar. Badusha Jafar is a Mithun Lagna. And he is the last part of a Mithun. When he born with a silver spoon. Nobody knows that he was the last empire. और उसका जनरेशन या उसके एंड में उसका दफन का पैसा भी नहीं था उसके पास. भोपाल में जहाँ उनको गया दफन तक का पैसा नहीं था. मूवेबल, सी मूवेबल ओनली कैन चेंज एंटायर थिंग फ्रॉम चेहरा टू सी. व्हेन यू आर वॉकिंग, रनिंग, इट इज चेयर. आइदर यू आर नॉट रनिंग, यू आर स्टैंडिंग, इट इज स्थिर. व्हाट इज दिस अबाउट? यू आर suppose I have to rush to the station, I'll rush and then I'll stand on the queue, ticket window, then I will start. This is this about. You are standing and your pulse is, this is use about dual things, chehra and seat together. Because you are standing, that is sthira, but you are breathing more. This about. So this about chehra and seat both. So whenever there is a primary, if your primary pleasure with the chair, always a dissatisfaction in life. Because you need more. Give more. Chair, if you born in the fix, you will live simple life and end will be the simple. All basic necessity will be fixed. आपने चालू किया, एजुकेशन किया, जॉब पे आए, काम किया, आप रिटायर हो गए, आपके बच्चे ने बिजनेस संभाल लिया या बच्चे ने घर संभालना चालू कर दिया. You have a smooth life. अभी अप डाउन में स्थिर. Dual, they have nothing or they have, it is a journey. That is why in my lecture I say it is a journey between something to nothing or nothing to something. This is nothing but the journey to something to nothing or nothing to something. Very rare. See in my reading, when my mother seen 20,000, 25,000 horoscope, I rarely seen Mesha Lagna. You will also find Mesha Lagna. Very rare. Means you will see as an astrologer, you will see many rare as a Mesh Lagna. You will also face कि आपके पास अगर 5,000 कुंडली आई है तो उसमें मेष की गिनती से 3 या 4 आए. Why? Because Kalpurusha is blessing. Kalpurusha is blessing with everything in everything house. सब घर में सब अपना ही जगह है. उसके सर की जगह उसका सर है, आपके सर की जगह आपका सर है. वृषभ लग्न की बात करो तो उसके पैर में उसका सर है और उसके सर पे उसका गला है. सेकंड हाउस इज गला. और मीन लग्न की बात ही नहीं करने का, पूरा उल्टा है. सब ऑर्गन उसका उल्टी पलटी है, सब उल्टा पूरा ऑर्गन. इसलिए normally you will find a majority वृश्चिक लग्न, मीन लग्न. वृश्चिक लग्न comes for the curiosity, because in the house of इंडेक्स. वो अपनी रहस्य को ढूंढने आएगा. मैं ये क्यों पास नहीं हो पाया, वो कभी नहीं पूछेगा मैं पास होऊंगा कि फेल. वो फेल होने के बाद आएगा मैं फेल क्यों हुआ, वो सर्चिंग के लिए आएगा. मेरा शादी क्यों नहीं चला, वृश्चिक लग्न. क्योंकि वो उस रहस्य को जानने आता है कि सब जो कर रहे वही मैंने किया तो मेरा क्यों नहीं चला. रिसर्च के लिए वो आता है कि मेरा ऐसा क्यों नहीं चला जो सबका चला. तो वैसे बहुत सारी चीज़ें वो आपको तुरंत पता चल जाए कि इसी चीज़ के लिए आया, और इसी चीज़ को आप पहले ही बता दो. जैसे साहब ने बोला ऐसा, उसकी दुखती नस पे हाथ रखने, क्योंकि वहाँ पे वो चोट खाया हुआ है, पर मलहम रखने का, दवाने का नहीं, मलहम रखने का, उसको मलहम देने का कि ये ऐसे करने दे. और हर एक का रेमेडी मैंने आपको दिया कि कुछ भी चीज़ें नहीं चलती है. सी सपोज बोलते जॉब में चल नहीं रहा, नथिंग इज हैपनिंग इन जॉब. व्हाई? बिकॉज वी आर अपोजिंग एवरीवन. आप सबका अपोज कर रहे हैं, ये फालतू है, ये बकवास है, इसके पास कुछ नहीं है, ये नहीं, ये अपोजिंग. 5th हाउस इज हाउस ऑफ अपोजिशन, 6th हाउस एंड 7th हाउस इज हाउस ऑफ अपोजिट. या क्रिटिसाइजिंग, या बिगेस्ट क्रिटिक्स. That is why your things are not working. Why people have more enemy? The same thing. Because the only one person will be the enemy will created if you tell the fact. Until 99% the enemy creates because you oppose it. What he is doing, you are opposing. Hey, ये क्या कर रहा है? ऐसा करने का क्या? So that is why. So everywhere the remedy is like. So Kendra, either your Kendra will be fixed, basic Kendra will be fixed. Either you see एक राशि लिखने पे
यहाँ पे जैसे जैसे इन्होंने भी बोला कि राशि लिखने से बाकी सारी चीज़ें पता चल जाती। सर एक यहाँ पे राशि डालने से क्या आपको पता चल जाए कि इसकी प्राथमिक सुख क्या होंगे, स्थिर रहेंगे, घूमते रहेंगे, या ये बदली कर देगा, इसका परिवर्तन स्थान कैसे रहेगा। बहुतों को क्या होता है, आप देखिए नॉर्मल ऐसा होता है कि हम हमारे बच्चों को हमारे जैसा बनाना चाहते हैं, कैसे होगा। तुम स्थिर है, वो द्विस्वभाव है, तुम द्विस्वभाव है, वो चर है, तुम चर है, वो स्थिर है। इसलिए बोलता है ना, जॉब करने वाला क्या करेगा, बोलेगा मेरा बच्चे को ना मैं बिजनेस में डालेगा, उसको जॉब नहीं करने देगा, क्योंकि वो फिक्स है ना, वो चाहता है उसका लड़का डबल करे, ड्यूअल करे। एक अपने से अपना, ये डार्विन ने शोध नहीं की है, दिस इज नॉट डार्विन प्रिंसिपल दैट आवर नेक्स्ट जनरेशन इज विल बी मोर इंटेलिजेंट, नहीं, या द ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम मंकी। इफ दिस ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम मंकी, देन व्हाई द मंकी हैज लेफ्ट आउट, they all should be turned into the human being. If the Darwin principle if you apply 200 years where such a stupid people have said that all human evolution from monkey, no, human beings are human beings. So अगर ऐसा है तो अभी क्यों नहीं बन रहा है, अगर ऐसा प्रिंसिपल है तो, क्योंकि यहाँ पे बोल जाए कि वंस जनरेशन से एक जनरेशन एक स्टेप आगे रहेगा। आप अपना फैमिली से भी तो यही करता है, आपका परिवार स्थिर है, आप चर है, आप चर है, आपका परिवार सही बोल रहा है, वो स्थिर है, वो चाहते हैं कि आप भी उनके जैसे स्थिर हो, तो आपको चर का भूत लगा है, इसलिए आप चर है, आपको स्थिर का। इसलिए बेसिक से पहले लग्न का साइन देख लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग्न में फिक्स है, लग्न में ड्यूअल है, लग्न में चर है, तो आपकी पर्सनालिटी से कौन मैच नहीं खाएगा वो आपको पता चलेगा। आप कौन कौन सी चीज़ में अपनी पसंद की ला सकते हैं। आप अपना फैमिली चूज करके आते हैं, आप अपने बच्चे को भी चूज नहीं कर सकते, आप अपना सुख चूज कर सकते हो, ये घर लो कि वो घर लो, इससे शादी करो कि उससे शादी करो, ये काम करो क्यों, क्योंकि वो ही आपके स्वभाव है, उससे आपको रोज निपटना है, इसलिए आप वो आपके स्वभाव वाले को पसंद करते हो। और नहीं चलती है तो आप बोलते हैं यार ये काम मैं गलती कर गया, ये काम मेरे सूटेबल नहीं था, मेरे वाइब्स नहीं मिलते या एनर्जी नहीं हो रही है, whatever you say. So you have only control over your pleasure. Don't interfere in your other pleasure. They all are running by nature. That is why Kendra Stan, these all three are Kendra, no? These all three are Kendra. आपका दूसरा केंद्र ये थोड़ा ऐसा केंद्र से टिल्ट हो गया है, और इससे तीसरा ये उससे भी ज़्यादा टिल्ट हो गया। ये तीनों केंद्र कर लो, तीनों में पड़ी हुई साइन इफ यू सी कि मेरा ये चीज़ फिक्स है, इसमें कोई ऊपर से आके नहीं डाल सकता है, फिक्स। अगर आपका पणफर स्थिर, पणफर स्थान अगर आपका स्थिर है, मतलब आपका लग्न कोई भी चर लग्न है, तो समझिए कि आपको परिवार हर वक्त सपोर्ट करेगा, बच्चा अच्छा निकलेगा, लाइफ अच्छा कटेगा, और फ्रेंड्स हर वक्त हेल्प करेंगे। आप है खुद जो कि मूवेबल है, बाकी ये सारे आपके सपोर्टर। जो सेकेंड लाइन जिसे आप बोलते हैं, योर आर फिक्स। सेकेंड लाइन इज ओनली इफेक्टिव व्हेन योर थिंग्स आर नॉट वर्किंग, योर लग्न और योर केंद्र इज नॉट वर्किंग, देयर इज नो नीड ऑफ द अदर केंद्र। और अपोकिलम, सी द अपोकिलम, if apokilam house is occupied by sthir, it is only the worst combination. If the apokilam stan, that is 3, 6, 9 and 12 house is occupied by fix, what happens every time you have to sacrifice half, and that is fix. खर्चे आपके फिक्स होंगे, आपका भाग्य या आपका रिलीजन, रोज एक तो एक ही मंदिर में जाएगा, दूसरे मंदिर में नहीं जाएगा। उसको बोलो ना कि आप साईं बाबा को, नहीं मैं अपना ये इधर बाजू में ना गणपति में तो उधर ही जाता है, मेरे को उधर भी नहीं जाता। फिक्स, अगर ये फिक्स वाला चीज़ आपको फिल्म में आ जाता है तो आपका कुछ चीज़ें आप कंटिन्यूसली, क्योंकि ये आपका कंटिन्यूसली लॉस हाउस है, आप ही फल मिलने वाला है। आप आधा चीज़ जो फिक्स है वो गवा रहे हैं, ओनली दैट इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन, एंड दैट कॉम्बिनेशन अपीयर्स इन फिक्स लग्न। इसलिए द्विस्वभाव लग्नों को अपना और पणफर का बिल्कुल अच्छा फल मिलता है, क्योंकि वो दोनों उसके मूवेबल रहेंगे और ये उसका ड्यूअल रहेगा। यहाँ पे वो कैपेसिटी चेंज कर सकता है। द थिंग्स विच इज लूजिंग हैव नो कंट्रोल। लाइक कोई भी द्विस्वभाव लगने वाले को देखिए, उनका उनके रोग पे पता है कि ये चीज़ से रोग होने वाला है, नो कंट्रोल। 3, 6, 12 इज अ फिक्स साइन, नो, इट इज फिक्स साइन। तो बोलेगा अभी कुछ भी करेगा ये होने वाला है,
तो जाने दो, करने दो उसको। जितना मेरा ये भाव वो भाव भगवान है उनको पता होता है, फिर भी दे आर नॉट कंट्रोलिंग देयर अपोकिलम स्थान। वो क्या है, वो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो फिक्स हो गया। उसका डेयरिंग हर बार डेयरिंग करेगा, फिक्स है उसका। हर बार एनिमी को फेस करेगा, फिक्स है, और डिजीज फेस करेगा। हर बार उसके भाग्य में फिक्स चीज़ें आएगी, हर बार उसको लॉस होगा, क्योंकि ये फिक्स हो जाता है। ये फिक्स नहीं होना चाहिए, इसमें मूवमेंट का चांस होना चाहिए। इसलिए कालपुरुष ने वहाँ पे 3 स्वभाव लिखा है कि देयर शुड नॉट बी सर्टेनिटी इन योर 3, 6, 9, 12। ये भाव बहुत सेंसिटिव होते हैं अपोकिलम स्थान। नॉर्मली लोगों का क्वेश्चन अपोकिलम स्थान से होता है। अब ज़्यादातर पाएंगे कुंडली में सबसे ज़्यादा भाग्य स्थान और व्यय स्थान के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मेरा भाग्य कब चलेगा, मुझे ये धंधे में नुकसान गया है, वो कब ठीक हुआ, 9 बार परदेश जाना, विदेश जाना, ये सब 9, 12 या नया काम करना होता है, साल या छठा भाव, बीमार है, नौकरी नहीं चल रही, शत्रु, ये सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि ये चैलेंजिंग हाउस है। वाई इट इज़ चैलेंजिंग? बिकॉज इट्स अफेक्टिंग योर प्लेजर, इट इज़ मेकिंग लॉस टू योर प्लेजर। का लॉस करने वाले, और वो भी कुदरती नेचुरली लॉस करते हैं। एंड 12, इट इज़ वाई 12 इज कॉल्ड नॉन रिकवरेबल हाउस। वहाँ से आप कुछ नहीं पा सकते। तो इसका 12, इसका 12, इसका 12, आपका 12, वही कॉम्बिनेशन में रिवर्स होता है कि अगर वो सारे लोग केंद्र में आ जाए तो अच्छा होता है, और केंद्र के अधिपति वहाँ चले जाए तो अच्छा होता है। दैट इज़ वाई अगर लग्नेश व्यय स्थान में का बोलेगी, ये अपने शरीर का इस्तेमाल नुकसान में करेगा, ये अपने शरीर की कैलोरी ऐसे कार्यों में डालेगा जहाँ अल्टीमेटली लॉस होगा या बॉडीली इफेक्ट होगा। यही 12वें का मालिक लग्न में का बोलेगा, ये बेस्ट में से बेस्ट करने वाला आदमी है। मेरे लक्ष्मी मित्तल ऐसे बहुत सारे क्लियर देखा है, वह इस लग्न में बैठा है, तो जिसको लोग लॉस समझते हैं ये इसमें से गेन करेगा। वैसे ही आपका एक योग है विपरीत राजयोग, जिसको आप बोलते हैं 6 का 8 में, 12वें का 6 में। विपरीत राजयोग का मतलब होता है इन विपरीत परिस्थिति देविलान, जैसे फ्लड आ गया, सारे लोग का बिजनेस डूब गया, अब इंश्योरेंस वाले, गैरेज वाले, इनका बिजनेस चलेगा। विपरीत राजयोग, इन विपरीत कंडीशन ओनली दे विल नेवर अर्न इन द नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करना। उसके बाद आपका इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस बढ़ गया, लोग सब डर के इंश्योरेंस कराने लगा, गाड़ी को रिपेयर कराने लगा, इंस्ट्रूमेंट लेने लगे, सब वेपन ये सब लगे। तो विपरीत राजयोग यही आपका विपरीत है। लग्न का मालिक 12वें में, लग्न का मालिक 6 में खुद जाके सरेंडर हो गया, ये सरेंडर टू हिज डिजीज, आओ और मेरे को परेशान करो। Lord of 6 is placed in first, no disease in the life, because disease and Bhavat Bham says the Lord of any house placed in the 8 from it, we lose it first. जैसे बॉडी यहाँ खत्म हो जाती है, ऐसा कोई भी भाव का मालिक अपने से अष्टम भाव में, पहले तो कुंडली में ये देखिए किस भाव का स्वामी और कारक अपने से अष्टम भाव में गया, ये चीज़ उसको कभी नहीं मिली, बिकॉज इट इज एंडेड, खत्म हो गया। अब इसका मालिक अगर लग्न में बैठा तो उसको रोग प्रतिकारक शक्ति रहेगा, डिजीज नहीं रहेगा। पहले का आदमी 8वें में बैठा है, यह आदमी ऐसा काम करेगा जिससे खुद तो भयभीत होगा ही, औरों को भी भय करेगा, भय हाउस ऑफ फियर। यानी फेथ लॉर्ड इज प्लेस इन फर्स्ट, ये किसी से नहीं डरेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे राम गोपाल वर्मा ने पिक्चर बनाया था, डरना जरूरी है या डरना मना है, वॉटेवर जो भी पिक्चर था। अब वो पिक्चर वो देखेगा थिएटर में आपके साथ, तो हंसेगा के साथ सब लोग डर रहे हैं, इसने क्रिएट किया ना, इसने क्रिएट किया तो वो नहीं डरेगा। तो 8th house God is in the first house, the fear goes inside, no fear, and when you go to the fear will come. So इसलिए that is विपरीत योग इसलिए वही लग्न 12वें भाव में you are losing your energy daily और draining your energy। बहुत सारे लोग इसे समझने क्या होता है कि डेली आप वैसे रूटीन में नहीं देखते, आप थकते बहुत ज़्यादा है, और उसका रीज़न आप मेडिकल रिपोर्ट में निकालो, कुछ नहीं आएगा, वो बोलेगा हीमोग्लोबिन कम लगता है, और वो तो 8 हीमोग्लोबिन वाला भी चल के जा सकता है, तो आपको क्यों है? So you are doing such an activity which drain your calories and drain your energies. आपका खुद का आत्मा बल्कि वो वीक कर रहा है। So Bhavat Bhavam says, see from each house. Whenever there is a new student, I always give him advice to prepare 12 chart. 12 कुंडली बनाने का, हर भाव का एक कुंडली बनाने का। अगर आपको धन देखना है, create the कुंडली of the second house. Start from the second house and create it.
क्योंकि फ्रॉम सीइंग द कुंडली यू नो व्हाट इज केंद्रा, व्हाट इज 6 8 12, व्हाट इज 2 3 11, आपको कुंडली में पता है। बट ये आप बोलेंगे कि भाई ये भाव से ये चौथा है, नहीं चौथा इधर है, क्योंकि आपको सिखाया गया कि ये चौथा है, ये नहीं है चौथा। हर एक भाव भावार्थ भाव में बोला है एवरी हाउस इज अ हाउस। क्या होता है कि फॉर यू योर वाइफ इज गुड, आप बोलते हैं कि ये मेरा सुख लेके आई, और परिवार वाले बोलते हैं ये हमारी शत्रु है। ये 6 from 8 हाउस, इसलिए क्या करेंगे, ये इसका विरोध करेंगे, ये इसको अच्छा लगेगा। भावार्थ भाव आप बोलते हैं सेकेंड हाउस का मालिक अगर अपने से 8वें भाव में गया, वेयर इट प्लेस पाकिस्तान में गया। दूसरे भाव का अधिपति अगर अपने से अष्टम भाव में जाता है तो आपका कुटुंब और आपका धन नष्ट हो जाता है। अब दूसरे एंगल से देखें तो क्या होता है, फॉरेन, अब फॉरेन गए तो क्या होता है, आपका बोली खत्म, एंड हो गया, आपका बोली नहीं चलेगा, आपका पैसा नहीं चलेगा, आपका रिलेशन नहीं चलेगा, आपका खाना नहीं चलेगा, तब आप चलेंगे, आपके लिए अच्छा है। भावार्थ भाव, दैट इज द रीजन फ्रॉम व्हिच हाउस यू आर सेइंग। तीसरा भाव देख रहे हैं, तीसरे भाव का कुंडली अलग से बनाइए और बोलिए उसका केंद्र भी कौन कौन है। चौथा भाव बनाए, उसका खड्डे का स्थान का। मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ व्हेनेवर मून, शुक्र या मंगल या आपके 9वें भाव या 11वें भाव या तीसरे भाव में बैठे तो आपको इस चीज़ों का सुख नहीं मिलेगा। आपको चंद्र राशि आज का सबसे बर्निंग क्वेश्चन है, दैट इज स्लीपिंग, नींद नहीं आ रही। फिर वो दिल पिक्चर का गीत है, मुझे नींद करना है, मुझे चैन करना है। नींद आज का सबसे बड़ा सुख नींद है, खाट नहीं, पलंग नहीं, नींद है। तो निंद्रा, दैट इज स्लीपिंग सीन फ्रॉम द मून। व्हेनेवर मून कम्स you go to bed and sleep because that gives you the rest. Sun never gives the rest to the body, moon gives the rest to the body, and that is why the people doing opposite to it. See, many people sleep at the day and working in the night shift. They'll never get a pleasant sleep. पूरा दिन में 12 घंटा सोएगा तो भी रात को नींद आएगा, क्योंकि रात को चांद आएगा, रात को चांद आएगा तो नींद आएगा, वो नींद लाएगा अपने आप। तो चंद्र, और जिसको नींद नहीं आता है उसका फेस में पता चलता है, यहाँ पे चंद्र आ जाता है। चंद्र है, बीच का चंद्र इधर दिखता है। बहुत से लोग बोलते हैं वो क्या, मैं चश्मा पहनता था देखती थी ना इसलिए ये आ गया। वो नहीं, आपको रात को नींद नहीं आता है, यहाँ पे तो नींद नहीं आएगा। यहाँ पे शुक्र है तो आपके पास ब्लैक मनी नहीं है। मोदी साहब को अपना बता दो, मेरे पास वो ब्लैक मनी फ्रॉम वीनस। नाउ दिस इज अ न्यू थिंग्स यू हैव टू लर्न, बिकॉज ब्लैक मनी वाज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ पराशरा। पराशरा डजंट, आपको आज कोई आके पूछेगा मेरे पास बहुत ब्लैक मनी है, क्या करूँ, तो आप उसका सेकेंड हाउस देखेंगे तो उसके फादर ने नहीं दिया उसको ब्लैक मनी। यस जनरेटेड, यस जनरेटेड। तो ब्लैक मनी इज फ्रॉम वीनस। शुक्र आपको ब्लैक मनी देता है। अगर शुक्र आपके कुंडली में भाग्यस्थान में में या तीसरे भाव में तो आपके पास ब्लैक मनी नहीं होगा। मेरा शुक्र है इसलिए मुझे पता है, रोकड़े का तकलीफ होता है। एवरीथिंग इन अकाउंट, एवरीथिंग इज ऑफिस। थर्ड हाउस शुक्र, ब्लैक मनी इज दैट। See, normally what happens from black money, what you will do, you can't show it to the government. You just make a pleasure. आप उसका सुख ही भोगे। See, even though in the third house, if you say that there are lots of, that is a Rahu which is in the third house or 11th house, you will generate the black money. You get a pleasure from the unnatural side. So if Venus is placed and if he says that there will be black money, that black money will never give him pleasure. See, normally what happens, out of black money, people either go to foreign, they purchase the gadget, they purchase the lifestyle, tour, travel, that is only possible जहाँ पे आपका रोकड़ा लगता है. So Shukra will give that. But if Venus is placed in this house, if Mars is placed in this house, there is no. See, I show it as a Karaka. I don't show it as a Swami. They are not Swami. And in the beginning I cleared, Swami gives, Karaka enjoys. Karaka उसका enjoyment देता है. That is why they might have the black money, they will not enjoy. So
Venus, Shukra and Mangal is in this house. Directly you say either it is Swagrahi or Ucha. See, Swagrahi and Ucha only increase the strength of the planet. It will give the support to the planet. It will not add or minus the quality of the planet. It will add only the quantity. Sign is a container. Whenever the planets sit in the container, either it will increase its quantity or it will reduce its quantity. Quality nobody can change. Even though Saturn is debilitated, suppose अगर शनि आपका नीच का है, debilitated शनि, that will also that वो नीच का शनि भी उसको नियम से ही चलने देगा. नियम में परिवर्तन नहीं, तो ये नियम को थोड़ा बहुत ट्विस्ट करेगा. नीच का है इसमें बस, तो वो चलेगा नियम में. कभी कभी अभी जैसे बहुत सारे लोग फास्ट करते हैं, ये फास्ट के लिए भी शनि होता है. Saturn in third house, Saturn in sixth house and Saturn in ninth house, the people always catch the fast. ऐसे ज़्यादा देखा है, क्योंकि फास्ट करना उसका मतलब है बंधन नहीं खाने को, नहीं करना, मुँह बंद रखना, नाक बंद नहीं रहता है, मुँह ही बंद रहता है. स्मेल सब आता है उसको. बाजू में पाव भाजी बनाए रहते हैं, कल बनाते, आज तो ऊपर से नाक नहीं खाता. So Saturn in third house, Saturn in sixth house, Saturn in the ninth house, they always catch the fast. Or fast, why? Because fast is one type of बंधन. बंधन है ना ये, और ये बंधन अपने भाव से केंद्र में गया है ना, तो वो करेगा. क्योंकि मैंने बोला केंद्र कंटिन्यूस देता है, तो कंटिन्यूस बंधन में, मतलब कि अभी शिव का चल रहा है तो शिव का फास्ट, विष्णु है तो विष्णु का फास्ट. ये देव गुरुवार तो बोलता है वो साईं बाबा के नाम पे लिख दिया. So fasting is from Saturn. Normally, because I met whom I don't know, with John in '95, some foreign lady came. So she said that our fasting system is different from your Indian perspective. You do fast, but don't eat salt with that. You don't eat salt. और अपना हर चीज में वेपर पेपर ये वो सब में salt रहता है. बोलते you don't eat salt on the day when you are fasting. You eat everything बोलता है. Just don't take the fast. So I asked why it is there. So it will cleanse yours because of the salt. The iron will be affected. If you don't take iron, your chakra will clean immediately. So after the cleansing the chakra, those who are doing that Reiki and this pranic healing, they wash with the salt water. Because all the negative energy is wiped out by the salt. So in the fast, if you don't eat the salt, then your chakra will come into the alignment and they will cleansing. Because of the salt, the cleansing system is affected. Those who take the more salt become more sick. ये हमारा है ना, डॉक्टर बोलते हैं बहुत ज़्यादा सॉल्ट है तो सॉल्ट थोड़ा कम कर दो, तला हुआ कम कर दो, क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट से ज़्यादा बॉडी इफेक्टेड होता है. Anyway, that is not our medical explanation. But this is the things. So bhava to bhava, one thing is sure that each bhava is important. No bhava is left out. कोई भाव ऐसा नहीं है जो खराब है. So whenever you are seeing from either house, see, साहस के लिए ये अच्छा भाव है, ये आपके लिए अच्छा नहीं. There are always three dimensions. We say the three dimensions. One from लग्न, one from house. See, लग्न से एक अलग कॉम्बिनेशन होता है जो भाव से अलग होता है. जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया कि जैसे आप ये बोलते कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपका आपके भाग्य स्थान में बैठा है. वैसे कभी नहीं बोलेगा कि सेकंड लॉर्ड प्लेस इन द नाइन्थ. It is not get 9. It is place 8. So when your second lord is placed in 8, you have to give up all your second house. पहले आपको अपना second house छोड़ना पड़ेगा. जब ये छोड़ेंगे तो ये पाएंगे, और ये कौन पाएगा? आप ही ना, you, me, हम पाएंगे. So इसीलिए whenever there is a भावाद्भाव, अगर यहाँ से वो अष्टम गया है, don't worry. इधर से तो अच्छा गया है ना, you will be benefited. So every house, in every house, this house is not good. हम बोलते हैं कि आठवां भाव खराब है, तो ये इससे अच्छा है, ये इससे अच्छा है, इससे नहीं, इससे अच्छा नहीं. Fourth house will give you the just a moment before your death. How will be your death? 8 will give you exact the point of death, and 12 will give you what happens after the death. In my Dasha lecture also I given one small tip. Whenever somebody died,
उस समय का टाइम जरूर देखिए. मेक द कुंडली, यू कम टू नो where he is flying, where he is flying. His 12th house will give you the indication where he is not. Don't search, you will not find. But at least people so curious, they will say, sir ने बोला है 12th house में ये साइन हो, तो उसका जीव आस पास के पेड़ में गया है, तो आजू बाजू के पेड़ को हिला के देंगे. एक के बदले 100 जीव नीचे गिरेंगे. तो डोंट डू दैट सच टाइप ऑफ. या आप सबको दे दीजिए जो बच्चा मेरा, जो अच्छा कभी होता है. So that's the beauty of the Bhava. That is the first basic principle of the Parashara. If you don't apply the first principle, all your prediction will go out. So fourth says, अगर आपका चौथा भाव, उसी देखिए आप ज़्यादातर मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन देखा है कि जिन्होंने बहुत जीवन में सुख पाया है, बहुत वेल्थ है उसके बाद, he will also pass more time in bed at the last. अब देखिए ज़्यादातर अस्पताल में वही लोग सफ़र होते हैं जिन्होंने पूरे जीवन में बहुत सुख पाए. आप चाहे तो रिलायंस का अस्पताल देख लीजिए या बॉम्बे अस्पताल देख लीजिए, कोई भी अस्पताल में देखिए, इससे पैसे वाले लोग वहाँ पे बेड ऑक्यूपाई करके सोए. लीलावती फेमस. वाई? बिकॉज वंस योर 4th house is increased, you get ample of the pleasure, but your end will be also prolonged. You will sleep in that bed and waiting. Agony, life will not end. So that is the 4th house. 4th house अच्छा है तो सुख नहीं है. एक दुख की बात है, आपको एंड में भी बहुत सुख मिलेगा. बैड पे गुड नर्सिस विल टेक केयर ऑफ यू. योर बॉडी विल बी बर्न इन द चंदन सिक. अच्छा है, बट व्हाट इज प्लेजर फॉर यू? नो. ये लिखा है यहाँ पे चौथा भाव में ऐसा ऐसा सुख बहुत है, इसलिए हम कम सुखी है तो हम कम पीड़ा भी तो भोगते हैं. गरीब आदमी देखो कैसे मर जाता है, पता तक नहीं चलता है, क्योंकि उसके पास सुख कम था, तो मृत्यु भी ऐसा ही आ गया. 8th house, द एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ द लास्ट बर्थ यू टेक, एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ योर लास्ट बर्थ, कि उस वक्त पे अगर अष्टम भाव में आपके बहुत सारे ग्रह, तो समझिए कि आपके मरने के टाइम बहुत सारे लोग होंगे और आपका मतलब वो बहुत अच्छी तरह से मनाया जाएगा. लाइक यू सी रजनीश, देयर इज सो मेनी 6 प्लैनेट इन द यूनिवर्स, वेयर देयर आर सो मेनी प्लैनेट. और अभी अगर ऐसा कोई आपका फेमस स्टार का कहीं कुछ ऐसा हुआ तो आप नहीं जाएंगे? नहीं चाहेगा, बिकॉज एवरीथिंग इज somebody can see. So उस समय पे क्योंकि उसका भी देखिए 6 to 8 हाउस में बहुत सारे ग्रह. So at the end, so many people will gather. See the person who was left out with us in 31st of August. उसका भी देखिए कि उसके उसमें भी हजारों आदमी गए थे. नहीं जाना चाहिए. So 8 house shows like this. In 12th house, where your soul is flight, वो आपको 12th house बताएगा. कैसे बताएगा वो मैं अभी, क्योंकि मेरा टाइम भी हो गया, टू लीव टू अनदर क्लास. तो वो सारी टेक्निकें हैं, बट दिस इज द लास्ट, इसलिए इसको मोक्ष त्रिकोण बोला है ना. यू हैव अ धर्म त्रिकोण 1, 5, 9, देन अर्थ त्रिकोण 2, 5, 2, 5, 6 and 10. अर्थ जहाँ से आप पैसा कमाते हैं, यहाँ से या कर्म, अर्थ त्रिकोण 3, 7 and 11 काम त्रिकोण. काम का मतलब होता है मनोकामना. यहाँ पे आपकी इच्छा का उद्गम है, यहाँ इच्छा आपके सामने आती है और वहाँ इच्छा पूरी होती है. So वायु तत्व साइन इज ऑल इज योर कामा. एंड लास्ट 4, 9 and 4, 8 and 12 moksha. They are why moksha? Because one shows past of your death, present of your death, and future of your death. That is why namasha, that is a Chandra technique. They see the namas, how many planet place in 4 sign. आपका अर्थ त्रिकोण में पहले धर्म त्रिकोण आता है. अगर आपका धर्म त्रिकोण में ज़्यादा ग्रह है, अब वो कुंडली में देखने की जरूरत नहीं,
see in your first graph how many planet is situated in first nakshatra. Nakshatra first charan. The planet situated in nakshatra first charan. By default it is in chara only. It is always chara. और अग्नि तत्व, अग्नि तत्व. सो पहले चरण में ज़्यादा गया है धर्म त्रिकोण, दूसरे चरण में अर्थ त्रिकोण, तीसरे चरण में काम त्रिकोण, चौथे चरण में चौथा आपका जल तत्व ही रहेगा. तो इसमें से देखिए अगर आपका अग्नि तत्व पहले में 159 में ज़्यादा गया है नौमास में, दैट मीन्स यू आर बॉर्न फॉर. सी वाई दिस इज अ लग्ना एंड दिस इज नौमास इज अ इनर वॉइस. Inner voice of your, what you feel internally. In my Namas, that video I disclosed that whatever internally you feel is from the Namas. So you have taken birth, but you forgot the reason for your birth. So to know the reason of your birth is the Namasha. Namasha, if there is a more planets placed in the Agni Tattva, that is a Dharma Trikon, you came to join people. आप ऐसा कार्य करके जाएंगे कि बहुत सारे लोगों को जोड़ जमा करेंगे, बड़े बड़े कार्य करेंगे जिसमें आपके अंदर 5000 लोग काम करेंगे, 5000 लोग आपसे मिलेंगे, या पॉलिटिशियन बनेंगे, वो भी आदमी को जमा करता है. धर्म त्रिकोण, फिर अर्थ त्रिकोण आता है. दैट मीन्स यू ओनली बिलीव दैट द मनी कैन डू द थिंग्स. अर्थ का मतलब होता है दैट थिंग्स स्टार्ट विद मनी, दैट थिंग्स एंड विद द मनी. मनी और कंसिडरेशन, एनीथिंग will not be the always the material thing, but the consideration. They will take something, then only they will give something. That is the artha. Then kam, that means you have some kamana in the last birth. Something has left out, and whenever you get a chance, you fulfill that kamana. You born, the birth of your is due to some reason, kamana. And once that kamana, manokamana, whatever is fulfilled, your life will end it. And if you are in the moksha, अगर आपका 4, 8, 12 है, मैंने ज़्यादातर देखा है कि जिनका कुंडली मोक्ष कारक होता है या जिनके नौमास में ज़्यादा ग्रह 4, 8, 12 साइन में है, उनका रिलेशन सस्टेन नहीं होता है, उनको कोई चीज़ कंप्लीट नहीं मिलती. वाई? बिकॉज दिस इज़ अ लास्ट बर्थ, बिकॉज दिस इज़ अ लास्ट एंड कंक्लूडिंग सेशन. दिस इज़ अ एंड वेयर यू हैव टू गिव एवरीथिंग यू लेफ्ट आउट. सो देन ओनली द सोल विल रेस्ट. तभी मोक्ष होगा. जब कुछ बच जाएगा तो वापस जन्म होगा. तो सब चीज़ बोलते हैं बचपन में जो दोस्त थे उसमें से कोई नहीं टिका, ये उसका आंतरिक व्यय दुख दर्द है उसका. बोलते हैं बचपन में कोई नहीं टिका. आज मेरे साथ मेरे 3 भाई 2 बहन थे, उसमें से कोई आज मेरे साथ नहीं. ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला. रिलेटिव छोड़ के गए, फ्रेंड्स नहीं टिके. वाई? बिकॉज यू हैव गिवन देम व्हाट दे हो, नॉट सेटल. वाई दे विल रिमेन? खत्म हो गया. तो 4, 8, 12 समटाइम क्रिएट सकता है फिक्सेशन. पीपल फाइंड वेरी डिफिकल्ट, अरे मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है. दैट इज अ गुड साइन दैट दिस इज योर लास्ट टू रिपे एवरीथिंग, एंड इन 12 you get a chance to go ahead. That is why Chandubhai said whenever the 312 activate, that is a time to live this heavenly earth. आपको यहाँ से ऊपर जाने का टाइम है, but there is a 3-12 combination. Because 3 is 8 from 8, that's the exact point of your death. और यहाँ पे जैसे मृत्यु हुआ, वहाँ अगर आपका ऊपर कुछ है, ऐसा होता है ना कि एक बटन दबाने से 2 लाइट एक साथ होती है. ऐसा है कि once this activate is simultaneously it is not activated, your soul you cannot write RIP behind him. His soul will not rest in peace. अब इतने RIP, you know, because 12th house is not connected, so his soul is not rest. His soul is, मैंने बोला ना, या यहाँ से बाहर निकलेगा या यहाँ से वापस आ जाएगा. या आपको एंड टाइम का कुंडली जब बनाएंगे तो भी बनाएंगे. आई गिवन माई आर्टिकल इन मुंबई समाचार 2012 या 13 में था. तो वेयर पीपल गोज आफ्टर द डेथ, कहाँ जाएगा वो, उसका आयुष्य विचार, टाइटल वो आयुष्य विचार. उसमें मैंने लिखा है कि उसका अंतिम समय पे ग्रहों का क्या सिचुएशन है उससे पता चलेगा वेयर ये है. एंड दैट वाज ऑथेंटिक. नाउ आई विल पब्लिशिंग इन 27 को ये सोच दे आपका 26-27 जो भी आर्टिकल है दे दो, विल ट्रांसलेट. समबडी गोइंग टू ट्रांसलेट. मेरा गुजराती का कोई उस समय तो किसी ने बोला था. अच्छा, समबडी वाज देयर.
Okay. So here the golden principle of Parashara I ended with the Bhavatva. Don't see any single house without linking it to the other house. If you are seeing from that house also, and also see the simultaneous effect of the Lagna. If you are seeing from house only, इसका मालिक इधर गया उधर गया, इससे इसको फर्क पड़ने वाला है, इसको फर्क पड़ने वाला है. He will be suffering, either gaining. So you have to link Bhavatva with the Lagna. Where I rest, then whenever there will be good time, will again meet. If anybody have a question, please ask. Because I have made the predicting technique very simple. अब इससे simple इसका doubt है तो और कर सकते हैं. Anybody? Two things may happen. Either you have not understood anything, so no question. सर मील लग्न के बारे में सिर्फ 2 लाइन बताइए सर. No, pleasure of home. Mangal is a कारका of घर. ऐसे लोगों को हम बोलते हैं जिनका मंगल 9वें भाव में 11वें भाव या 3रे भाव में होता है. डोंट परचेज होम अंडर कंस्ट्रक्शन. आपके वजह से दूसरों का अटकेगा. आपने उसमें बुक किया है इसलिए दूसरों का भी अटकेगा, क्योंकि आपको सुख भोगने का योग नहीं है तो बाकी सारे लोग भी उससे वंचित हो जाएंगे. या वो लिटिगेशन, मंगल का सबसे बड़ा काम है लिटिगेशन, या वो चीज़ें लिटिगेशन में जाएंगी. टाइटल विल 9 same house where I have written Mars. So better you get a pleasure from home but not a title from home. See, title and pleasure is different. Anyone? सर मील लग्न के बारे में सिर्फ 2 लाइन बताइए कि क्या करना क्या नहीं करना. बस मैंने मेष के लिए भी कुछ नहीं बताया. नहीं सर, देखिए ना आपने मुझे क्वेश्चन पूछे तो दिस इज माय क्वेश्चन. व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट. Don't be emotional and be practical. See, मीन वाले है ना वहाँ से चालू करेंगे जहाँ से शुरू नहीं करना चाहिए. अगर वो यहाँ पे आएंगे ना, सर मैं लेट हो गई, बस यहाँ खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो उसका इतिहास चालू है. मैं घर से निकल ही रही थी, गेस्ट आ गए तो ये हो गया, फिर मैंने रिक्शा लिया वो भी नहीं मिला, उसका पंचर हो गया इसका. उसके बाद लास्ट में बोली बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँची, अभी जरूरत ही ताकि इधर पहुँचना. दिस हिस्ट्री इज नॉट रिलेवेंट. सो क्योंकि मीन राशि अभी कोई है मीन राशि या मीन लग्न, डोंट फील बैड. सब होने के बाद जो बचा वो मीन में डाल दिया था, लास्ट था ना. कुंभ में क्या हुआ था, कलश खाली हो चुका था वैसे ऑलमोस्ट, इसलिए वो पोर कर रहा था. तो जो बच गया मीन में डाल. मीन इज कंफ्यूजन ऑफ ऑल, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एंड नथिंग. इसमें मीन वाले इतने बहुत ज़्यादा आगे भावुक होते हैं. अगर ये जावेद अख्तर साहब है तो वह बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अच्छा चीज़ लिखेंगे, क्योंकि ये कल्पनाशील लोग हैं. 12वां 12th हाउस के लिए भी बोला कि काल पुरुष में 12th हाउस में